व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? ओके, आज जो है ना, आज का टॉपिक थोड़ा सा बहुत हैवी टॉपिक है. आई मीन आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट बिकॉज it was like something I was reading a lot about, I was hearing a lot about, and believe me, like after hearing, after reading about the case, I'm just like shocked. I'm like it's like मतलब क्या बोले अभी, सेफ्टी in India, like I said in my last videos also, थोड़ा डिफिकल्ट है इंडिया में बीइंग अ वुमेन. यस, सो यस, दिस केस इज वेरी 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 सेंसिटिव and it is still like there is no justice has been done, and it is still in the court. And yeah, so let's begin. So this is the story of Saujanya, a teenager from a small village, Pangala, near to Dharmasthala. I think 16, 17 years old girl. I think I still need to confirm the age. She was studying in the second year pre-university course, SDF College, of a place called Ujire. So the girl was very brilliant, very intelligent girl, very ambitious also, and बहुत छोटे से शहर से थी वो लड़की बेचारी. और अब हम लोग स्टार्ट करें उसकी कहानी. तो उस दिन क्या हुआ, इट इज लाइक ऑन October 9, 2012 का केस है ये. अभी रीओपन बार बार होता है बिकॉज they arrest the wrong people, and then cases like they are not able to gather the proofs. तो वो सब बहुत controversies चल रहा है अभी उसका भी. So nothing is cleared yet. Who did who committed that horrible crime? जिसने भी किया, they are for sure not humans. They are animals totally. Like क्या बोले ऐसे लोगों के बारे में, क्या बोले पता नहीं. इन लोगों के घर में बहन, बेटी, माँ होती भी हैं या नहीं, या होती भी हैं तो उन लोग की अपब्रिंगिंग ही वैसी होती है कि सबको वैसे ही देखते हैं वो लोग शायद. सो आई एम वेरी सैड ऑल्सो, एट द सेम टाइम वेरी एंग्री ऑल्सो. लाइक वी ऑल शुड बी, वी ऑल मस्ट बी. आई एम नाउ दिस गर्ल Saujanya, on October 19th, 2012. She was, she got ready. She was getting ready to leave to go and attend her college, and she was in a hurry. Actually, that day, in that village, in that particular area, there was some festival also called Hosa Aki, I think, New Rice. So what they do on that occasion is, like, the villagers, they prepare dishes only with new rice, not the old one, like which is already there in the house. They buy new rice and then prepare something from that rice. So but Saujanya was getting late for her college. So her mom was saying, at least eat something, कुछ खा लो बेटा तब जाना. But she said नहीं, उसको लेट हो रहा था. So she left, and then she left. Already she was late. She was getting late. It was already 7:30, I think. Yeah, around the same time she left. She left for her college, and she took the bus, and she reached college at around 7:30, I think. She didn't reach. Like she took the bus from the bus stop, and I think on the way she was walking towards the bus stop. She एक security guard ने भी उसको देखा. लेटर उसका भी बयान लिया गया था. तो ही क्लेम्ड दैट उसने वो लड़की को देखा था बस स्टॉप की तरफ. शी वाज वॉकिंग.
टुवर्ड्स द बस स्टॉप. अब बस सिक्योरिटी गार्ड को क्रॉस करने के बाद थोड़ा आगे जाने के बाद शी मेट हर अंकल ऑल्सो. उसके अंकल ने भी उसको देखा, उसको पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो, अभी कॉलेज जा रहे हो, लेट हो गए हो. तो शी सेड विद अ स्माइल, हाँ मैं लेट हो गई हूँ. एंड शी सेड आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा. सो प्लीज डोंट माइंड अंकल, आई विल हैव टू लीव एंड आई कैन टॉक टू यू, आई एम ऑलरेडी लेट. तो उसने बस लिया. शी टुक द बस. She reached college and around I think 3:45 उसकी classes over हुई. So her classes got over at around 3:45. अब she left college along with her other friends also, group of friends. So they walked towards the bus stop. बस स्टॉप में जाकर सब लोगों ने सी ऑफ किया, हाई किया, बाय किया सब लोगों ने. एंड अब वहां से उसने बस लिया. बस लेकर शी रीच्ड, आई थिंक शी वाज सपोज्ड टू वॉक. बस ने उसको वहां पर ड्रॉप किया. उसका घर वहां से आई थिंक 10 मिनट्स ही था. शी वाज सपोज्ड टू वॉक 10 more minutes टू रीच हर होम. अब वो 10 मिनट ही उसके लिए बहुत डेडली हो गए. अब वो बस शी वॉज जस्ट वॉकिंग टूवर्ड्स हर हाउस. उस बीच में क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता. nobody knows what happened to that poor girl. उसके बाद her mom at around 5 o'clock she was supposed to reach there by 5 max to max. अब 5 बज गए, 5:30 हो गया, 6:30 हो गया एंड her mom was getting worried. अब वो बहुत फिक्र हो रही थी. वो सोच रही थी अब क्या करूँ. अब she called her dad को कॉल किया सौजन्या की मॉम ने. एंड she said प्लीज आप घर जल्दी आओ, प्लीज कम बैक होम अर्ली बिकॉज सौजन्या इज स्टिल नॉट होम. वो कहाँ है किसी को पता नहीं है, क्या करूँ, मैं बहुत वरीड हूँ. शी स्टार्टेड क्राइंग ओवर द कॉल. देन her father also reached home and then along with other villagers they started searching for her. सर्च करने के लिए उससे पहले थोड़ा वेट किया, थोड़ा सर्च खुद से किया और थोड़ा सा वेट करने के बाद देन दे वेंट टू द पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन. वहां गए तो अगेन सिस्टम पता चलता है यहाँ पर क्या है यहाँ पर इंडिया में. दे रीच द पुलिस स्टेशन to register an FIR at least missing complaint. तो अब वहां पहुंचने के बाद जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने बोला वहां पर कंसर्न पीपल दे सेड वी रजिस्टर कंप्लेंट ओनली आफ्टर 24 hours of missing. अब कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं हुई तो विलेजर्स और पेरेंट्स थे वो लोग सब खुद से ही अपने एंड पर ये लोग सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया. दे वर स्टिल सर्चिंग फॉर हर द नेक्स्ट डे ऑल्सो मॉर्निंग. अब क्या हुआ, मॉर्निंग में भी वो लोग सर्च कर ही रहे थे. अब सब लोगों ने ग्रुप्स डिवाइड कर लिए. तो फाइनली वही हुआ डर था जिसका. आई मीन दे फाउंड हर बट इन अ वेरी horrible condition. I can't even explain to you. I can't. They found her body finally. वो मिली सौजन्या बट उसकी बॉडी डेड बॉडी, नॉट सौजन्या. The brilliant girl, the smiling face. और उसकी बॉडी जिस कंडीशन में मिली ना लोगों को उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ मैं यहाँ पर. So they raped her also. They killed her. Rape and murder. I don't know what to say. So ये अब उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद एक आदमी को पकड़ा भी. उसका नाम आई थिंक संतोष या समथिंग, हाँ संतोष था. अब अकॉर्डिंग टू देम, आई मीन अकॉर्डिंग टू संतोष फादर,
ही वॉजंट मेंटली स्टेबल. वो घर में रहता भी नहीं था ज़्यादा. आई थिंक वो था भी दूसरा टाउन में. इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो यूज टू लिव इन सम डिफरेंट टाउन, और वहाँ किसी सम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में वो कुछ तो काम छोटा मोटा करता होगा, रहता होगा वहाँ पे. बट वो थोड़ा अनस्टेबल था मेंटली, कुछ था इशू उसको. बट कुछ ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका था नहीं, कुछ नहीं था ऐसा, नथिंग वाज देयर. तो यस, उसको अरेस्ट किया, अंदर डाला. केस चला 10 साल तक. 10 साल तक नोबडी कुड प्रूव एनीथिंग. कुछ प्रूव नहीं कर पाए लोग कि वो गिल्टी है या नहीं, उसने कमिट किया है क्राइम या नहीं. कुछ प्रूव नहीं कर पाए वो. बट 10 साल ही वॉज इन जेल. 10 साल, कैन यू इमेजिन? 10 साल बहुत ज़्यादा होता है. 10 साल तक वो जेल में रहा. उसके बाद भी कुछ प्रूव नहीं हो पाया उसके अगेंस्ट में. दे हैड टू रिलीज हिम फाइनली. एंड अब उसके बाद में फिर केस अभी भी पेंडिंग है. किसी को कुछ नहीं पता है अभी किसने ये किया. जो भी किया, हॉरिबल क्राइम, whoever committed is for sure not a human. ह्यूमन होते हुए भी वो ह्यूमन नहीं है. जिसने भी ये किया, पता नहीं किसने किया, वो तो अब भगवान को पता है. हम इंसान तो यहाँ पे कुछ प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम्स हम लोगों के हाथ में नहीं रहते, राइट? सो दिस इज द सिचुएशन. आई डोंट नो गाइज, आई डोंट नो वेयर आर वी हेडिंग एज अ सोसाइटी. हम लोग कहाँ, किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? हम लोग के लिए सिर्फ रिलीजन दे दो बस. इंडिया में लोगों को रिलीजन के नाम पर वो पता नहीं, उनको खाना भी मत दो. डोंट गिव देम फूड टू ईट, बट गिव देम रिलीजन. रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई उनके लिए. वो दे दो बस उनको. भूखे पेट भी सो जाएंगे वो. उनको कुछ नहीं चाहिए. और अब बाकी ये सब केसेस तो होते रहते हैं. इनको सबको आदत हो चुकी है भाई. nobody is even talking about it. That innocent girl with lots of dreams, second year में थी वो. Can you imagine? हम सबके घर में बच्चे हैं, राइट? हम भी कभी बच्चे थे, हम लोग भी पढ़ने जाते थे, हम लोग भी स्टूडेंट्स थे. हमारे भी बच्चे हैं, हम वो लोग भी पढ़ने जाते हैं. और बच्चे नहीं तो भाई बहन कोई तो होगा घर में, सब होते होंगे, है ना? फैमिली वाला देश है ना हमारा. तो ऐसे जब ऐसा कुछ किसी के साथ होता है तो हम चुप क्यों बैठे रहते हैं? फिर कहाँ चली जाती है फैमिली वैल्यूज? नहीं है शायद. मर रहे हैं हम लोग एज अ सोसाइटी. ये वैल्यूज नहीं रहेंगी तो हमारी सोसाइटी भी नहीं बचेगी. हम एज अ नेशन भी नहीं बचने वाले. विदाउट वैल्यूज, विदाउट कंपैशन, without the right values, you don't have any future. First learn to be a good human. Then only you can, you can think about ruling the world. So पता नहीं कब हमारे देश में औरतें सुरक्षित महसूस करेंगी. बस और क्या बोलूँ. यही थी आज की कहानी जो मुझे सुनाते हुए मुझे आई एम फीलिंग वेरी हैवी. और थिंक अबाउट इट गाइस, लाइक वेयर आर वी हेडिंग टू? सोचिए. आप सबके घर में बच्चे होंगे, आप सबके घर में माँ बाप, पेरेंट्स सब होंगे, राइट? तो बस एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और बस ध्यान रखिए. होली आ रही है, एंजॉय होली एंड बट बी केयरफुल ऑल्सो. और हैव अ हैप्पी कलरफुल होली. आई डोंट नो, मैं ऐसा केस आपको नरेट किया, ऐसा स्टोरी और जो भी है, और उसके बाद मैं बोल रही हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगा. एनीवेज, life goes on, but not like this. Now it is going, things are going out of hand. So we need to wake up
till it's too late. So make things better, guys. Make your society better, make yourself better first, and then society will automatically change and will become better, and we can become Vishwaguru. Okay. Take care, enjoy your Holi. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर.